Hi everyone, my name is Shivani Tyagi and I teach UPSC philosophy. So when we talk about philosophy subject, people think it's very abstract and very tough to crack, but that's not the case. Maybe you are not, implementing those strategy correctly. Maybe you are not understanding the syllabus. So I'll tell you how to do it. So we have to divide in days, and how we'll do it. Let's take day 1 to 25, then day 26 to 55, and then day 56 to 85, and then day 86 to 90. Now, what are these days? How we are going to plan it? Let me take you to the first subject, Indian philosophy. Day 1 to 25. So when we talk about Indian philosophy, why did we take Indian philosophy first and not rest of the subjects? The reason behind is कि इसमें जो philosophers हैं, the philosophies these are included, वो कहीं ना कहीं हमारे ethics में और ऐसे में देखने को मिलती है. So it's better to do Indian philosophy first. Now when we talk about Indian philosophy, how to do it and how to plan it. Always remember that Charvak, Jainism and Buddhism, all these philosophers are saying same thing. They are talking about same thing. They are criticizing the same thing. So to understand it more, make keywords. First of all, understand what these Sanskrit words are. If you want to understand what Pratyaksha is, an examiner asks you to define Pratyaksha and gives you a situation and to answer that, तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे. Make sure कि आपके पास एक नोट पहले से प्रिपेयर हो which is giving you a proper precise definition of प्रत्यक्षा, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये definition है and you have to give this example, you have to criticize these philosophers and this is the quote that you have to mention, right? So Indian philosophy में सबसे ज्यादा फायदा यही होता है that these all philosophers are saying the same thing, they are criticizing the same thing. और कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में इनका रेलेवेंस देखने को मिलता है. तो इट्स लाइक यू आर डूइंग टू सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम, राइट? So make sure that your notes, that your Sanskrit words and your quotes, everything is so strong that the moment you see those philosophers, आपको वो हर एक चीज याद में आ जाए. Okay, so coming to the next, Western philosopher. So Western philosophy is my favorite and the reason behind is क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अलग नहीं बोला है. It's like that we are reading all these philosophers from the very beginning. जब से शायद होश संभाला या फिर तब से चीजें समझ में आई हैं. We are reading all these since then. So इनको पढ़ना सिर्फ it's not like mugging up all those big words and then writing it in the examination. अगर वो चीज कर दी होती तो एग्जामिनर उनके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ देता, राइट? But that examiner wants to know what's your perspective about those philosophers, right? So he wants to know how you relate these philosophers to the real life situations, to the society, to your character. So to understand this, you have to understand कि हर एक philosopher की theory उनकी personal भी है और उसका relevance, उसका जो relation है वो कहीं ना कहीं और philosophies में भी देखने को मिलता है. So if I tell you कि empiricists, now empiricists are those जो परसीव करते हैं दे बिलीव ऑन दोज थिंग्स, राइट? तो इसका आप एरिस्टोटल से कैसे लिंक करोगे, उसका आप प्लेटो से कैसे लिंक करोगे? ऑल दीज थिंग्स शुड बी ऑन योर पेपर, ऑन योर नोट्स. और ये सारे रेलेवेंस, ये सारे क्रिटिसिज्म आपके दिमाग में सिर्फ नाम देखने से हो जाने चाहिए. हर एक फिलोसफर ने एक रियलिटी, एक लाइफ को लेके, एक एनवायरमेंट को लेके, कुछ फिजिक्स को लेके, हर एक चीज के बारे में बोली है, ठीक है? बट द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड कि उसका रेलेवेंस आज की लाइफ में क्या है, आज की न्यूज में क्या है, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स और उसका रेलेवेंस देखो कि किस फिलोसफर को आप उस न्यूज में रिलेट कर सकते हो, उनके आइडियाज को, कोई एम्प्रिसिस्ट है, रैशनलिस्ट है, उन्हें आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो इन दैट न्यूज. वो सारी सिचुएशन आपको ये सारे पढ़ने के बाद करनी पड़ेगी. नाउ सोशियो पॉलिटिकल आई थिंक ये सारी चीजें भी हमें बहुत पहले से पता है. इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, राइट? तो ये सारे आप आई प्रेफर कि आप हमेशा न्यूज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियो पॉलिटिकल, तो ये सारी चीजें भी हम पहले से सुन रहे हैं, राइट? बट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर जस्टिस की बात हो रही है तो यहाँ पे रोल्स का नाम आएगा, ठीक है? अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो अंबेडकर. तो ये सारे वर्ड्स के साथ, फिलोसफर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए. और ये चीजें होंगी आफ्टर स्टडिंग ईच दोज फिलोसफर्स इंडिविजुअली, और उसके बाद उनका कोरिलेशन देखकर. और वो कोरिलेशन सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, आपके जो डेली में न्यूज़ हो रही हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, या फिर किसी और थ्योरी से लिंक करके, उसका
पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि वो एक उनकी थ्योरी से सीमित है, ठीक है। तो मेक श्योर ऑल दोज फिलोसफर दैट यू आर रीडिंग are somewhere linking to the society also, because philosophy is a subject which tells about your character, how you are building it up. और मैंने अपने नोट्स में भी ये चीज बोली है, मैंने क्लासेस में भी बहुत बार बोला है कि आपका रेलेवेंस फिलोसफी के साथ कितना है वो ज्यादा एग्जामिनर को देखना है। फिलोसफर्स ने क्या बोला है, ही ऑल्सो रेड इट, ठीक है, बट ही वांट्स टू सी कि वो आप किस तरीके से उस चीज को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो इसका हमें नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ रिलीजन। ये क्वेश्चन तो आई थिंक हम सबने सुना है सोसाइटी में कि भगवान है या नहीं है, और अगर है तो देन व्हाई सो मच ऑफ जस्टिस, इतना इनइक्वालिटी क्यों है, राइट। सो दीज क्वेश्चंस ये आई थिंक बहुत पर्सनल है, और वो किस तरीके से आप उस चीज को अटेम्प्ट करेंगे, वो आप किस तरीके से अपने कैरेक्टर में बिल्ड करेंगे, आपकी थिंकिंग क्या है, दैट यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर एनालाइजिंग। सो मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखता है कि जो भी रिलीजन के क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली, और उसको अगर उसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखती है, उसमें कोट्स नहीं दिखते हैं, उसमें एग्जांपल्स नहीं दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर कि आपका आंसर स्पेशली इस बेसिस पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन मग अप, राइट। कुछ ऐसे क्रैमिंग नहीं कर सकते हैं। आपका आंसर इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि वो और बाकी जो आप पेपर दे रहे हैं उनसे अलग दिखे, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में वो चीज दिखाई होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग। इंडियन और वेस्टर्न का लिंकेज, कि दोनों कैसे लिंक कर रहे हैं, किस बेसिस पर लिंक कर रहे हैं ये फिलोसफर्स, वो आपके पास पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। मैं अपने क्लास में भी ये चीज बोलती हूँ कि आपके जो फिलोसफर्स हैं इंडियन और वेस्टर्न के, उनके सामने हमेशा या तो टेबल के फॉर्मेट में, या फिर कीवर्ड्स के फॉर्मेट में, या फिर पॉइंटर्स में, या फिर लाइनर्स में आप हमेशा लिख कर लेकर चलो कि आपको उन फिलोसफर्स को, या फिर कौन सा फिलोसफर्स किस थ्योरी के साथ लिंक हो रहा है, और ये इंडियन और वेस्टर्न में भी होता है। उसके बाद 88 डे पे यू विल रिवाइज सोशो पॉलिटिकल, देन रिलीजन, एंड देन फुल मॉक पेपर, इट्स मस्ट। और हमेशा याद रखिए कि जब आप पहले इंडियन पढ़ रहे हैं देन यू डोंट हैव टू लीव दैट सब्जेक्ट इन बिटवीन, या फिर अगर सिर्फ वेस्टर्न पढ़ रहे हैं तो इंडियन को छोड़ना नहीं है, यू हैव टू टेक दैट सब्जेक्ट, कीप ऑन रिवाइजिंग दैट, एंड सेम गोज विद वेस्टर्न। जब आप सोशो पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग इंडियन एंड वेस्टर्न टुगेदर, क्योंकि अगर बीच में ब्रेक आ जाता है तो हम फिलोसफर्स को भूल जाते हैं। देयर आर सो मेनी फिलोसफर्स, उनका लिंकेज बहुत ज्यादा है, देन यू हैव टू राइट द कोट एज वेल, उसके बाद एग्जांपल्स भी, इट्स बिकम वेरी टफ टू एनालाइज इट, राइट। सो मेक श्योर कि आप जब ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इंडियन पढ़ रहे हैं, आपका इंडियन फिनिश हो चुका है एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स वेस्टर्न, तो इंडियन को छोड़ना नहीं है, साथ में उसके जो पॉइंटर्स, जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, यू आर टेकिंग विद योरसेल्फ। फिर उसके बाद वेस्टर्न होने के बाद अगर आप सोशो पॉलिटिकल की तरफ जा रहे हैं तो मेक श्योर आप दोनों ही फिलोसफीज को उठाकर लेकर चलो, कंपेयर करो, एंड देन सेम गोज फॉर रिलीजन ऑल्सो, कि आप ये तीनों सब्जेक्ट रिलीजन के साथ लेकर चलो, और ये सारी चीजें आपकी टाइम मैनेजमेंट के साथ होगी, प्रैक्टिस के साथ होगी, और वो जो आप नोट्स विच विल प्ले अ मेजर रोल उसके साथ होगी। तो विद दीज डेज प्लान्स आई थिंक एनीवन कैन स्कोर वेरी नाइसली, बट जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके एग्जाम्पल्स होंगे, जो आपके कोड्स होंगे, एंड द थिंकिंग दैट यू आर बिल्डिंग, वो ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ रहे हैं। अगर आप फिलोसफी को सिर्फ इतना सा छोटा सा सब्जेक्ट लेकर चलोगे तो इट वॉन्ट हेल्प यू, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, राइट, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो मेक श्योर कि फिलोसफी को आप जितना ज्यादा ग्रैस्प कर सकते हो उतना ज्यादा करने की कोशिश करो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ने की कोशिश करो। डोंट टेक इट एज अ सिलेबस कि सिलेबस क्लियर करना है, बट सिर्फ उतना ही मत करो, बिकॉज आपका कैरेक्टर उसके आंसर में दिखाई देगा, और वो रेलेवेंस जो है, आपकी सोच जो है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी द मोमेंट यू विल स्टार्ट राइटिंग। सो मेक श्योर कि आप इस तरीके से पढ़ो कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं हो, इट इज लाइक रिफ्लेक्टिंग योर कैरेक्टर। सो विद ऑल दीज डेज प्लानिंग आई थिंक एनीवन कैन स्कोर 300+. थैंक यू।